So hi everyone, this is Saurabh Thakur here, and today we will talk about the Yale School. And Yale School is a school, but actually it is not a school. The Yale School. Actually, this is not a school but a university, and some people, some theorists were associated with this particular university, and those people were influenced by Jacques Derrida's deconstruction. Right? So they were influenced by that. So whatever their views are, their views on literary theory are just related to deconstruction. And who were those people? I will tell you. Number one is Paul the Man. Paul the Man. Number two is Geoffrey, not Geoffrey Chaucer, but Geoffrey Hartman. Hartman, Dil Wala Banda. But heart is H-A-R-T here. So just to remember Hartman, you can do things like that कि दिल वाला बंदा था वो, ठीक है. And third person we have J.H. Miller. J.H. Miller, and the last one is Paul the Man, Geoffrey Hartman, and Harold Bloom. Harold Bloom. ठीक है. These four people were associated with the Yale School, and Paul the Man. Okay, so first of all, I'll talk about J.H. Miller. So J.H. Miller was the person who is also related to culture studies, but I will also talk about him in my cultural studies videos when I will make videos on that topic in upcoming times. So J.H. Miller के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं. He presented a paper, and the title of that paper was Critic as Host. So this paper was presented in reply to M.H. Abraham's paper, The Deconstructive Angel. So this M.H. Abraham is the same guy who wrote the Glossary of Literary Terms as per my knowledge. So M.H. Abraham presented a paper, The Deconstructive Angel, and this paper was against deconstruction. And just in reply to this paper, he presented this paper, Critic as Host, J.H. Miller. Right? So M.H. Abraham in this particular work, he talks about deconstructionist theory, and he says that there is univocality in meaning. The text is univocal. Univocal means one language, one sound, one meaning, that is univocal. जिसका सिर्फ एक meaning हो, univocal. And he also says that if we use deconstructive strategies in writing or in interpreting a text, then the history is an impossibility. Obviously, because history is something which is fixed. बाबर जब पैदा हुआ, मरा तो मरा. That is history. But अगर आप strategies deconstruction क्या है, मैंने last जो मेरी वीडियो है वो deconstruction पे है, वो जरूर देखना. तो deconstruction is to break things and to bring out the meaning which is not present but is absent and which is hidden somewhere. तो जब आपको हर चीज को तोड़ मरोड़ के कुछ नया ही सामने लेकर आना है, तो हिस्ट्री कैसे रहेगी? हिस्ट्री is an impossibility according to M.H. Abraham. So in reply to that notion, J.H. Miller said that yes, and he says that there is no univocality in the text. There is no univocality, and univocal is an impossibility, and even history is impossibility. उसने बोला हिस्ट्री भी इम्पॉसिबिलिटी है और यूनिवोकलिटी भी इम्पॉसिबिलिटी है, जेएच मिलर ने. Why? Because meaning is not fixed. Deconstructionist idea is that meaning is always deferred. Difference जो मैंने बताया था एक्स डेरिडा की टर्म लास्ट वीडियो में, the meaning is always deferred, delayed, postponed, and it also differs. Right? तो इसने कहा कि सब कुछ इम्पॉसिबिलिटी है, हिस्ट्री भी इम्पॉसिबिलिटी है और यूनिवोकलिटी भी इम्पॉसिबिलिटी है, बट ही सेज दैट अ टेक्स्ट इज अ वोकलाइजेशन ऑफ अ वोकलाइजेशन. कि वोकलाइजेशन की भी वोकलाइजेशन है ये, मतलब कि आगे से आगे, मीनिंग आगे से आगे, ये किसी और की वोकलाइजेशन है. एक वोकलाइजेशन की वोकलाइजेशन है और वो वाली वोकलाइजेशन किसी और की वोकलाइजेशन है. तो मतलब कि कुछ भी फिक्स नहीं है यहां पे. जस्ट लाइक दैट J.H. Miller talks about that, and J.H. Miller also influenced deconstruction and heavily influenced by deconstruction as well. ठीक है, ये बात भी याद रखना. And then he talks about a thing, parasite. Parasite is an insect who feeds on other, जो कि दूसरों का खून चूस के बड़ा होता है. J.H. Miller says that many critics believe that this deconstructionist जो reading है, this is a parasite to its host.
ये वाला होस्ट मतलब कि द क्रिटिक और द राइटर ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्क. सो ही डिफेंडेड दैट पैरासाइट हैज itself many meanings. Para is something different and site is something different, and parasite also means someone who shares food with you, right? So when parasite has many meanings, so how can you say that this deconstructive, बहुत मुश्किल है बोलने के लिए, स्पीड में बोलो तो फंस जाते हैं. खैर, deconstructionist readings are parasite to its host, उसके बारे में भी बात करता है. And he also says that all the text or language is rhetorical, and he says that language is figurative. That's why it is very difficult for a language to represent reality directly or immediately. कि कोई भी जो language है वो figurative है, means imaginative है, figurative है, उस symbolical है, बहुत सारी meanings है. So it cannot directly present reality immediately. इसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं. दिस इज एम्बिगुअस. तो ये सारी चीजें हैं. जेएच मिलर का याद रखना है, इसका ये वर्क याद रखना है, ये किसके रिप्लाई में लिखा है. इतनी सारी चीजें भी हमारे यूजीसी नेट में बहुत काम आने वाली है. तो हम आगे चलते हैं, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं पॉल बाबा के पास. सो आपने वो गेम खेली होगी टेकन, जिसमें वो पॉल है हो आ मारता है, वो उस टाइप का. सो जब हम छोटे थे तब खेलते थे, तो बहुत फेमस गेम थी वो, बहुत मजा आता था. 1-1 रुपया चुरा के मैं गेम खेलने जाता था. तो पॉल, उस पॉल से आप नाम याद रख सकते हैं पॉल दी मैन का. पॉल दी मैन बहुत पावरफुल बंदा है, ठीक है. और इसकी अब एक बुक आती है बहुत ही जो इंपॉर्टेंट है, एस्थेटिक आइडियोलॉजी. एस्थेटिक आइडियोलॉजी 1988, याद रखना 1988. एस्थेटिक आइडियोलॉजी. दिस एस्थेटिक आइडियोलॉजी इज ऑल्सो अ टर्म एंड इट इज ऑल्सो अ बुक बाय हिम. अब ये पॉल दी मैन के बारे में पहले मैं बता देता हूं. पॉल दी मैन वाज अ बेल्जियन बॉर्न अमेरिकन लिटरेरी थियरिस्ट और राइटर और क्रिटिक, एंड ही बिलीव्स इन द आइडिया ऑफ रेट्रिकल लैंग्वेज. ही सेज दैट ऑल लैंग्वेज आर रेट्रिकल लैंग्वेज. रेट्रिकल लैंग्वेज. अब रेट्रिक क्या होता है? रेट्रिक इज आर्ट ऑफ स्पीकिंग, बट हियर द मीनिंग ऑफ रेट्रिक इज सिंबॉलिकल, फिगरेटिव, इमेजिनेटिव, राइट? क्योंकि हर चीज जो लैंग्वेज है वो रेट्रिकल है. वही वाली बात जो जेएच मिलर भी अभी कर रहा था, जोसेफ हिलिस मिलर है उसका पूरा नाम. एंड द सेम थिंग ही इज टॉकिंग हियर, रेट्रिकल लैंग्वेज. एंड एस्थेटिक आइडियोलॉजी इज हिज वर्क, एंड ही रोट मेनी एसेज, कलेक्शन ऑफ एसेज इन द बुक ब्लाइंडनेस एंड इंसाइट. ब्लाइंडनेस एंड इंसाइट, ये आपने याद रखना है. ये बुक आई है 1971 में. ब्लाइंडनेस एंड इंसाइट इज अ वर्क बाय हिम. एंड देन ही हैज ऑल्सो पब्लिश्ड अनदर वर्क विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एलेगरीज ऑफ रीडिंग्स, कोलन. सब टाइटल भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी भी पूछा जा सकता है. एलिगरीज ऑफ रीडिंग्स, इसमें आएगा फिगरल लैंग्वेज इन रूसो, ROUSSEAU, रूसो, नीट्शे, NIETZSCHE, नीट्शे, रिल्का एंड प्राउस्ट, मार्शल प्राउस्ट. 1979 ये बुक आई है 1979 में. मार्शल प्राउस्ट फ्रेंच था ये भी, और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से भी रिलेटेड है बंदा. नीशे को आप सब जानते हैं, ये फिलोसफर है, रूसो भी, और ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं. एंड दिस इज द होल टाइटल, एलेगरीज ऑफ रीडिंग्स, फिगरल लैंग्वेज इन रूसो, नीट्शे, रिल्का एंड प्राउस्ट, 1979. तो ये चीज आपने याद रखनी है. एंड नेक्स्ट वर्क आई विल टेल यू अबाउट हिम इज द रेट्रिक की. तो बात कर ही रहा है, ये सबको दिख ही रहा है. सो इसके टाइटल में भी रेट्रिक आपको मिलेगा. द रेट्रिक ऑफ रोमांटिसिज्म, द रेट्रिक ऑफ रोमांटिसिज्म. ये बुक आई है 1984 में. एंड द नेक्स्ट बुक इज द रेजिस्टेंस ऑफ थियरी, 1986. ठीक है. एंड द लास्ट इज एस्थेटिक आइडियोलॉजी, जो मैं आपको बताना है. सी देयर आर मेनी बुक्स
written by Paul Deman. There can be many books, more than 20, but I told you only 3 or 4 because if I tell you many books, then it will be a kind of tsunami for you people. So Paul Deman की इतनी सी बुक्स भी याद कर ली बहुत है. इसकी एक दो एस्थेटिक आइडियोलॉजी किस येल स्कूल से है, डिकंस्ट्रक्शन का ये बंदा है पॉल डीमैन, तो इस इतना भी बहुत है आप लोगों के लिए. ठीक है, अब पॉल डीमैन का हो गया. अब आगे चलते हैं हम. अगला बंदा कौन है? हेरोल्ड ब्लूम. Harold Bloom is the person. He's also important, and he was also an American literary theorist. Harold Bloom. Harold Bloom. So Harold Bloom is famous for his term anxiety of influence. Anxiety of influence. Or this is also a book, just like aesthetic ideology. It is a term and also a book. Anxiety of influence, a theory of poetry. 1973 में आई ये बुक. ठीक है, एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, अ थियरी ऑफ पोएट्री. इससे पहले कि मैं ये समझाऊं, सो लेट मी एक्सप्लेन द एस्थेटिक आइडियोलॉजी. में थोड़ा सा बताना भूल गया. एस्थेटिक आइडियोलॉजी, वैसे तो देयर इज नो नीड टू गो वेरी डीप into that aesthetic ideology, but aesthetic ideology is a kind of rigorous inquiry into the relationship of 3 things. Number 1 is rhetoric, number 2 is epistemology, and number 3 is rhetoric, epistemology, last वाला मैं भूल गया. तो rhetoric is art of speaking या फिर figural language भी कह सकते हैं, and epistemology last है aesthetic. rhetoric, epistemology and एस्थेटिक, राइट. इन 3 चीजों के बारे में है एस्थेटिक आइडियोलॉजी जो पॉल डीमैन की है. इतना याद रखना है आप लोगों ने. एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दीज थिंग्स. एंड एपिस्टेमोलॉजी इज द फिलोसफिकल स्टडी है, ये एक हिसाब से ब्रांच ऑफ फिलोसफी है, ब्रांच ऑफ फिलोसफी ऑफ ओरिजिन ऑफ ह्यूमन नॉलेज, राइट, एपिस्टेमोलॉजी. एंड एस्थेटिक इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी ऑफ नेचर ऑफ ब्यूटी, एस्थेटिक. सो इन 3 चीजों के बारे में ये है, और इसमें इतना ज्यादा डिटेल में जाना चाहो तो आप जा सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में भी हम नहीं जा सकते क्योंकि लंबा हो जाएगा बहुत काम. सो एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस. ओके, एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस. सो व्हाट इज एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस? एंग्जाइटी तो का मीनिंग आप सभी को पता ही है क्या होता है. ऑफ इन्फ्लुएंस. अब इन्फ्लुएंस किसका? देयर इज अ पोएट इनसाइड अ पोएट. फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग समथिंग, आई एम अ पोएट, एंड there is a very strong reason that I must be or I can be influenced by अ वेरी फेमस राइटर. ठीक है, जैसे कि मैं खुद रोमांटिसिज्म से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हूं, मेरी पोएम्स जो मैं लिखता हूं वो उससे काफी इन्फ्लुएंस्ड होती है. तो उसी तरह देयर इज अ काइंड ऑफ एंग्जाइटी इन अ राइटर व्हेन ही राइट्स समथिंग, एंड दैट एंग्जाइटी इज द एंग्जाइटी ऑफ द इन्फ्लुएंस दैट ही हैज ऑफ a very renowned writer. Just like if I am writing something, or if I am reading Wordsworth, so when I will write, so I will think that yaar, I am very weak, I cannot compete with Mr. Wordsworth. So that there is an anxiety in me, and then I will deliberately misread that text. एंग्जाइटी हो जाएगी मुझे कि यार ये इतना बड़ा राइटर है, मैं कैसे लिखूंगा इसके जितना, मैं तो इतना होशियार नहीं हूं, मेरी तो इतनी नॉलेज है नहीं, मैं तो इतना हेवनली इंस्पायर्ड नहीं हूं. ठीक है, मेरे पास वो म्यूज है नहीं. तो वो एक एंग्जाइटी हमें आ जाती है व्हेन वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटर्स हु आर वेरी फेमस एंड प्रिकर्सर्स, and that anxiety of influence, and when we misread the text deliberately, so that is anxiety of influence all about, right. इतना सा याद रखो एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस का. एंड हैरोल्ड ब्लूम ये हो गया, एंड ही हैज अनदर वर्क ऑल्सो, द मैप ऑफ मिसरीडिंग. द मैप ऑफ मिसरीडिंग. So this work came in 1975. ठीक है, अ मैप भी हो सकता, द या मैं कंफ्यूज हूं. अ मैप ऑफ मिसरीडिंग 1975 एंड एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस. हाँ, one another thing, Harold Bloom has also written one novel, and that is the only fictional work remaining of Harold Bloom, and the title of that work is The Flight to Lucifer. The Flight to
लूसीफर इज द किंग ऑफ डेविल्स, डॉक्टर फॉस्टस में भी इसका जिक्र है। सो इसकी डेट हमें पता नहीं है। द फ्लाइट ऑफ लूसीफर इज अ नॉवल बाय हैरोल्ड ब्लूम, बस ये याद रख लेना। एंड दीज आर द टू वर्क्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ हैरोल्ड ब्लूम। एंड नाउ आई विल टॉक अबाउट द अनदर गाय हु इज लेफ्ट। कौन बच गया है अब, आप याद करो, याद करो। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको पता होगा, जॉफ्रे हार्टमैन, ठीक है। जॉफ्रे हार्टमैन, ये बंदा जो था, इसके बारे में मैं ज्यादा बताऊंगा ही नहीं आपको। इसके में सिर्फ आपको आई विल टेल यू 3 और 4 वर्क। दुखद होता है कि जब आपके बीच में कोई वीडियो कट जाए और पता ना लगे, आप पढ़ा रहे हो और आपको बाद में पता लगे यार वीडियो तो बनी नहीं। सो दीज आर द वर्क्स which are by Geoffrey Hartman. Wordsworth's poetry, because he was influenced by Wordsworth very much. Just because of that influence, he wrote this particular work, Wordsworth's poetry, 1787 to 1814, and this work came in 1964. Then criticism in the wilderness. This work came in 1980, and the longest shadow, 1996 is my date of birth, तो मुझे तो ये ऐसे याद हो जाएगा. And saving the text, or this work came in 1981, and this work was also influenced by the idea of deconstruction and Derrida. तो ये जो works है ये जोफ्रे हार्टमैन के हैं. तो थैंक यू सो मच, जितना हो सका मैंने अपनी ओर से बताने की पूरी कोशिश की है. अगर आपको समझ आया हो, अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है, और अगर आपको वीडियो नहीं अच्छी लगी हो तो भी आपको पता है क्या करना है, डिसलाइक करना है वीडियो को, तो आपकी अपनी मर्जी. द येल स्कूल इज एसोसिएटेड विद डीकंस्ट्रक्शन, हमेशा याद रखना है. एंड दीज पीपल, दीज 4 और 5 पीपल आई टॉक्ड अबाउट, दे बिलोंग टू डीकंस्ट्रक्शन. तो कहीं भी आ जाए देन यू नो दैट यू हैव टू लुक फॉर दीज 4 और 5 नेम्स इफ यू वांट टू एसोसिएट देम विद डीकंस्ट्रक्शन. राइट, थैंक यू सो मच. तब तक अपनी लाइफ एंजॉय करें और बाय.